Hello everyone. In today's video, I am going to talk about some of the harsh truths about D2C business in India. There's a lot of noise regarding D2C business, e-commerce business, and dropshipping in India for past few years, or let's suppose past few months, mainly fueled by the creators who are chasing views, which has led to some dangerous expectations in the mind of common people, common students, people who don't have much money. So today, let's bust all the myths one by one, and I'll get into the reality of how things work. So the first myth is immediate profits from day one. There have been several creators I have came across who are creating videos and who have told in their videos that you will make profit initially from day one itself, but that's not how it works. Running Facebook ads does not mean you'll start getting profits from day one itself. Running ad is just the start of your customer acquisition process. It takes time to test, optimize, and understand what works for your audience. And let's be honest, profit comes with a combination of strategy, patience, and persistence, not overnight magic. आप इसे ऐसा समझो कि जब कोई हम फिजिकल शॉप ओपन करते हैं, वी डोंट एक्सपेक्ट प्रॉफिट्स टू बी कमिंग इट फ्रॉम डे वन, राइट? तो जो अपना ई कॉमर्स स्टोर है वो भी एक फिजिकल दुकान की ही तरह है, राइट? वहाँ पे भी आपने इन्वेंट्री रखी हुई है, वहाँ पे भी आपने सामान रखा हुआ है। वो आपका बस एक ऑनलाइन स्टोर है जो कि एज अ दुकान ही वर्क कर रहा है। सो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपका डे वन से प्रॉफिट आने लगेगा, वो हो ही नहीं सकता है। This is the ultimate truth. I have been a marketer, I have been a digital marketer, performance marketer for past 7.5 years. I have started 4 businesses, sold one of them, एक बंद हो गया था, and currently running one of them. So this is something which I'm telling you my from my past experience. You won't get profit in e-commerce or online business from day one. डे वन से अगर आप किसी चीज़ में प्रॉफिट बना सकते हो तो सिर्फ एक ही बिजनेस है, सर्विसेज बिजनेस। दैट टू अगर आपको काम रेफरेंस से आ रहा है, आपका वर्कफोर्स बहुत कम है तो। Now let's move on to जो second myth अपना चल रहा है इंडिया में. That myth is about ROAS. Being a digital marketer, running a digital marketing agency over here in Noida, so we come across people who keeps on asking us कि हमारा ROAS आप improve करा दोगे कि नहीं. There are so many clients जो हमसे यही पूछते रहते हैं कि आप हमारा ROAS कैसे improve कराओगे, कितनी जल्दी हमारा ROAS improve हो जाएगा. And I tell them only one thing, that ROAS is a completely blunder metric to be chased over here in India. I'll tell you the reason behind it. And honestly, this is again fueled by content creators chasing views on YouTube कि आपका ROAS इतना होना चाहिए, ROAS 5 होना चाहिए, ROAS 5 होना 4 होना. That's not how it works. For example, I am selling a product of 500 rupees. ठीक है, अगर मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 100 आ रही है और मेरा लेट सपोज जो प्रोडक्ट सेल हुआ है 500 का हुआ है, तो मेरा रोएस कितना हो गया? 5 का हो गया. वहीं मैंने खुद सेल करके देखा है, और आपने भी देखा होगा जो बड़ी कार्स आती हैं, जो बच्चों की जो इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं, उनका प्राइस होता है 10,000 15,000. तो उस केस में मेरा रोएस कितना हो जाएगा? आप सोचो, 100x का हो गया. तो इज रोएक्स द करेक्ट मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू यू? नो, इट्स नॉट. सो अब क्वेश्चन आता है कि करेक्ट मैट्रिक्स क्या होती है. सो करेक्ट मैट्रिक्स इज ऑल यू शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. अब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ मैंने कैंपेन चलाया और मेरा टोटल जो बजट स्पेंड हुआ 500 रुपीज़ का हुआ, उस 500 रुपीज़ में जो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए, लेट सपोज 5 ऑर्डर्स आए, राइट? तो मेरा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया, मतलब एक सेल लाने में जो मुझे पैसे खर्च करने पड़े, वो कितना हुआ? 100 रुपीज़ हुआ, राइट? दिस इज द मैट्रिक्स यू शुड चेज. आप फेसबुक ऐड आज से चलाने स्टार्ट करोगे बिल्कुल नए अकाउंट पे, तो हो सकता है आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 150 आए, 200 आए, 250 आए, 350 आए. मीन्स इसमें कोई किसी का कंट्रोल नहीं है. स्टार्टिंग में पहला तो टेस्टिंग में ही जाता है अपना 15 20 30 डेज. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. यू शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. अब द पॉइंट इज कि अगर मैं 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी 100 रुपीज़ आ जा रहा है, तो फिर मैं कैसे करूँ? तो फर्स्ट थिंग इसकी, या तो आप ना सेल करो उसे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि उसे हम बंडल बना के सेल करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, तो मैं सिंगल प्रोडक्ट क्यों ही बेचूंगा? एटलीस्ट आई हैव तो, जो मैथमेटिक्स अपनी रहती है ई कॉमर्स की, जो यूनिट इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं,
वो आपकी तभी बनेगी इफ योर प्रोडक्ट कॉस्ट इज एक्स एंड यूर सेलिंग इट एट 5 एटलीस्ट 3x और 5x, डिपेंडिंग करता है कि कितना प्राइस उसका हो रहा है। आई टेल यू द मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लिया, लेट्स सपोज मैंने ये वाला प्रोडक्ट उठा लिया, तो लेट्स सपोज रूबिक्स क्यूब, मुझे इसकी जो कॉस्ट प्राइस आ रही है इस प्रोडक्ट की, डेट इज 100 रुपीज। अब इस प्रोडक्ट को मुझे शिप करने में भी लगभग 80 रुपीज के आसपास का लगेगा इस प्रोडक्ट को शिप करने में, क्योंकि आजकल एक्सप्रेस शिपिंग करनी पड़ती है। 80 रुपीज इज द शिपिंग कॉस्ट, 100 रुपीज इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। इसके अलावा जो मेरा आएगा, लेट सपोज 120 150 रुपीज मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा है। टोटल कितना हो गया? टोटल मेरा 300 रुपीज हो गया। नाउ इफ यू विल सेल इट फॉर 500 रुपीज, 500 में से 18% आपका जीएसटी जाएगा, 90 रुपीज गवर्नमेंट विल टेक, तो जाके आपका प्रॉफिट बन रहा है। इसलिए दिस इज समथिंग विच नो वन विल टेल यू कि आपका अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस एक्स है, यू शुड ऑलवेज सेल इट एट 5x टू मेक प्रॉफिट, और एल्स आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। और इसी में लेट्स सपोज इसी में अगर मुझे प्रॉफिट बनाना है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बंडल इट विद वन मोर प्रोडक्ट ऑफ द सिमिलर कैटेगरी, बच्चों के यूज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अपना DIY गेम्स जो आते हैं, या फिर जो अपना एक्सपेरिमेंट्स वाले आते हैं, उन्हें मैं बंडल करके सेल कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगा। तो या तो आप अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम कर दो, जो कि जल्दी नहीं कम होती है, टाइम लगता है, और या फिर आप अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा लो। दिस इज द ओनली वे यू कैन मेक प्रॉफिट। डोंट चेज रोएस, always keep an eye on customer acquisition cost and always keep an eye on average order value. Now moving on to our next myth. So अभी जो रिसेंट में मैंने ऑब्जर्व करा है, एंड मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव, आपने भी कई लोगों ने ट्राई करा होगा, आई माई सेल्फ ट्राइड इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दैट इज ड्रॉप शिपिंग। इट्स अ people are saying that it's a quick path to riches. You don't have to maintain your inventory, you don't have to invest heavily in it. आप रोज के 500 रुपए से ऐड चलाना स्टार्ट कर दो, आपको सेल आने लगेगी। आई हैव सीन क्रिएटर्स who are creating वीडियो की रोज के 1,000 rupees they are spending, they are getting sales of 20,000 rupees. N number of creators are doing it. People are selling their courses for drop shipping, but this is a scam. Trust me on this, drop shipping is a scam in India. आप सोचो, इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, राइट? अगर कोई एक प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग का आप सेल कर रहे हो, आपकी तरह उसे 50 लोग और सेल कर रहे हैं, राइट? एंड इंडिया इज नॉट अ कंट्री जहाँ पे अपना, आप जो चाइना में रील्स देखते हो, जो यूएस में चलते हो प्रोडक्ट चलेंगे, इंडिया में वैसा नहीं है मार्केट। इंडिया में वो डेली हैक्स वाले प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं बहुत ज़्यादा। प्लस अब अगर ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 500 रुपये का लगाया, मेरे लेट सपोज 500 रुपये मैंने ऐड में लगाया, मेरे 10 ऑर्डर आ गए। ठीक है, आपके 10 ऑर्डर आ गए, आपके 10 ऑर्डर आ भी सकते हैं, बट नो वन विल टेल यू कि उन 10 ऑर्डर में से आपका आरटीओ कितना आता है। इंडिया में एटलीस्ट ड्रॉप शिपिंग के केस में आरटीओ परसेंटेज आपका 60-70 रहता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ड्रॉप शिपिंग इंडिया में क्यों नहीं करना चाहिए। 60 to 70% आरटीओ रहता है। अब अगर मैं इसकी आपको मैथमेटिक्स बताऊँ, तो यू स्पेंड 500 रुपीज ऑन एड, राइट? फिर आपने वो प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करी रोपोसो को, या जिसको भी आपने वो प्रोडक्ट वहां से शिप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का प्रोडक्ट था, आपके 10 ऑर्डर्स आए थे, तो आपको कितना हो गया? वो 1000 रुपीज हो गया, राइट? अब 1000 रुपीज आप, अब फिर रोपोसो ने लेट सपोज 100 में आपकी शिपिंग भी इंक्लूडेड थी, बट अगर कोई प्रोडक्ट भेजने में कस्टमर के पास 100 रुपीज लग रहे हैं, उसका जब आरटीओ आता है तो वो 200 लगता है, तो आपका जो नेट लॉस होगा इस पे 300 रुपीज का नेट लॉस आपका होगा। सो दिस इज अ मिथ, ड्रॉप शिपिंग डजेंट वर्क इन इंडिया। हाँ, सिर्फ एक सिनेरियो में ड्रॉप शिपिंग वर्क कर सकता है, अगर आप कोई यूनिक प्रोडक्ट बल्क में ही चाइना से इंपोर्ट करा लो, क्योंकि अगर ड्रॉप शिपिंग में कोई पैसा कमा रहा है आज की डेट में, तो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स कमा रहे हैं, जो कि व्यूज के लिए कर रहे हैं, या फिर जो अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं। आप सोचो, अगर कोई ड्रॉप शिपिंग से महीने के 1 करोड़ कमा ही रहा होगा, तो फिर वो कोर्स क्यों बेचेगा? सेलिंग कोर्स इज समथिंग विच इज द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग टू डू. Drop shipping is something which is the easiest thing to do. I have tried 4 businesses. I built them over the period of time, sold one of the business, and currently I'm scaling one of my agencies. So I know e-commerce is the easiest business. आपका सबसे कम टाइम में स्केल हो सकता है, सबसे कम रिसोर्सेज के साथ स्केल हो सकता है, बट अगर इतना ही अच्छा चल रहा होता ड्रॉप शिपिंग, तो बाकी लोग कोर्स क्यों बना रहे होते? आप सो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। ड्रॉप शिपिंग कोई क्विक रिचेस वाली चीज नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ड्रॉप शिपिंग इज अ स्कैम इन इंडिया, इट्स अ मिथ, इट डजंट वर्क इन इंडिया। So this was all about today's video. In the next video or in the upcoming videos, I'll also upload that how you can genuinely
make money online, and what are the businesses that you can do, what are the traditional businesses that you can do, and I'll also debunk all the myths related to online businesses which are prevailing in India, just to ensure कि nobody else falls trap. I have seen n number of people who come to me. uh, I run an agency, by the way, so I have n number of people who come to us that इस agency ने हमें इतना बोला था, इतना कर देंगे, and they have completely lost all their savings and everything. So be aware, अपने दिमाग आप खुला रखो, कोई चीज़ अगर इतनी आसान होती तो हर कोई कर लेता, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग.